Sir, shall we start? Yes, Very good morning to one and all. I hope I am audible. Yes, ma'am. And Okay. good morning. Good morning, everyone. Welcome to our first session of pre-PhD coursework. For this, we have with us respected Dr. Nikhil Ataye, sir. Sir, I welcome you on behalf of UGC HRDC Nagpur to this pre-PhD coursework. thank you, madam. Friends, let me introduce our today's resource person. Dr. Nikhil Ataye sir has done his PhD, MBA and engineering in mechanical engineering. Sir has more than 25 years of experience in corporate world, of which 18 years is overseas experience with leading multinational corporations in United States, Singapore and Thailand as senior management position as Chief Finance Officer. Sir is a visiting faculty at leading B schools in Thailand, Malaysia, and Singapore. His expertise is in corporate finance and he has delivered more than 100 lectures at various international conferences and other workshops. In India, he is associated with RTM Nagpur University and Amravati University as a visiting faculty at Department of Business Management. He has carried out various workshops in national as well as other universities. His research work includes regional development works carried out in Maharashtra. He has published 6 national and 2 international research papers till date. And he is extensively traveled across the globe and has visited near about 63 countries. With this brief introduction, I once again welcome you, sir, and I request you to please enlighten the participants. Friends, sir will cover the topics from Unit 1. To name few, that is meaning of research, motivation and objectives of research process, developing theoretical framework, content of research proposal, and ethical issues. Today he will take first 3 lectures and tomorrow also he will be having 3 hours lectures where he will finish all these topics. So I request you, sir, to please start your session. Okay, thank you, Preeti madam, for kind introduction. Good morning to everyone. Um, I'll be talking English, Hindi, of course, and very little Marathi. Since we are in online session, I want it to make it more interactive. Okay, you can raise any question, any doubt, any agreement, disagreement, so that we can learn from each other. Okay, whatever I'm going to tell you today and tomorrow, probably 70-80% you know it already. But the whole purpose of this, weekly program that you are getting into it is to minimize our mistakes, probably broaden our horizons, and learn something which you can probably practice down the road if you want to engage yourself as a researcher at some point in your life. Okay. So just like Madam said, I'll be talking today about the research process, motivation, and the theoretical framework. We'll be taking a break after 90 minutes. Okay. But आप बीच में मुझे सवाल पूछिएगा और डाउट्स क्लियर कीजिएगा because just like you, I am also a student. I am also learning many new things, and I would share some of my learnings with you. Okay, so let's understand the process of research. Okay, um, Albert Einstein, the great mind, human mind, the great human being. We are lucky to, have him on our, planet. What Einstein said, if we knew what we were doing, it would not be a research, right? So basically and fundamentally, research means going into a unknown. Okay. Beside that, when we are looking at unknown, we have certain idea, a fair idea, okay, but not 100% outcome expected that we know what will be the outcome of our research. So
any process where we explore into unknown territory, okay, using scientific methods, using appropriate design uh, methodology, using appropriate tools, then we are somehow certain that we will reach the outcome. And in research, I will tell you at the very first moment that there is no such thing as 100%. Even in a world that we are living, there is no such thing as 100%. So 100% कुछ नहीं होने वाला. We would rather try to reach towards 90-95%. And if we could succeed, then it will be an achievement. So journey into unknown. Now, when we look at the definition or the nature as such, okay, definition I will come in a very short while, but the nature of research is very diverse. Academically, we are all allowed to conduct our research into our own stream, into interdisciplinary streams, into a stream which is not even related to us. So that freedom is given to us by the UGC ordinance as well as the respective guidelines of the university. Okay, so you may conduct a research on, say, aliens, you may conduct research on the global warming, or you may conduct research on the impact of COVID-19 on the livelihood of below poverty level people. So anything can be done. But mind well, we have to understand that in a research, there is a word called re. That means we have to go and search it again. That is a basic premise of any research. And that too in a academic research, it is expected that one need not go and reinvent the wheel. फिर से हमें चक्का खोजने की जरूरत नहीं है. किसी और ने कुछ काम किया है पहले, उसी काम को अगर हम अलग तरीके से आगे ले चलेंगे, अलग मेथोडोलॉजी अप्लाई करेंगे, तो हमें अलग फाइंडिंग्स एंड आउटकम मिलेगी. ओके, सो रिसर्च, फिर से उसकी खोज कीजिए ताकि आपको कुछ नया मिल सकेगा. And when you apply this logic to a so-called applicatory research, हम दो टाइप के रिसर्च की बात करेंगे, academic research and applicatory research. The same principle is also applicable in applicatory research, where you go again and then you re-examine, okay, and then you find something else. So just like when Albert Einstein said the black hole do not exist, okay, then that notion was challenged by a great scientist from the United Kingdom, Stephen Hawking. And Stephen Hawking proved that the black hole exists. So basically what he did is to re-examine the work of Albert Einstein the Great and challenge his notion. So ये एक एकेडमिक पीयर वर्ल्ड में या रिसर्च पीयर वर्ल्ड में एक ये बेहतरीन पहलू माना जाता है जब आप किसी के थ्योरी को चैलेंज करते हैं. आई विल ऑल्सो गिव यू एन एग्जांपल. One great oncologist from Johns Hopkins University in the US, he wrote a paper, I think 5-6 years ago, probably 2015, and he wrote a scientific paper and he challenged the theory that cancer is caused by tobacco consumption. In his paper, he basically said that tobacco consumption does not lead to the causation of the cancer in a human body. Now that was a radical, contradictory theory. It will be challenged somehow. It is quite new. अभी भी लोगों को मेडिसिन या मेडिकल या साइंटिफिक वर्ल्ड में ये थ्योरी एक्सेप्ट करने की अभी भी they are not prepared for it. Okay, however, down the road somebody might come and will say that either this theory is true or either this notion or this theory is absurd or totally wrong. So किसी और का काम लेके आप अगर उसे आगे लेके जाते हो या उसके
पहलुओं में कुछ नए पहलू जोड़ते हो या उसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हो, then it also constitute as a research. Now, when we look at the definition, the very general definition is that when we are exploring the unknown, that means we wanted to find the answers to the question. Okay, how that process should be? Number one, it should be organized. It should be logical and it should be systematic. So if we could inculcate these three attributes, organized, logical, and systematic, that means we are on the right track to find the answers. If either one of the three is missing or two of the three is missing, तर मग तुमचा संशोधनाचा प्रबंध हे फक्त पुस्तक होतं. म्हणून we have to emphasize on the logical argument first. If you ask me how I would prioritize among these three attributes, the first and foremost, logical. There has to be logic why you are conducting a particular research. Okay, I'm sure when you submitted your synopsis and when the RRC approved your synopsis, many of you have built in a logical argument to or more extent. Second important attribute, it has to be systematic. It is just like a recipe. Okay, when we look at the research, it's like a recipe. So you are making any good recipe, which you don't make it on a day-to-day basis. You are only preparing it for some important or loved persons visiting your house. Also, you go through that recipe, and at the end of that process, your product, whatever you are preparing, becomes a top product. So in research, we call it as a systematic fashion. जो मैं आपको आगे वाले slide में बताऊंगा. जे संशोधन करताना त्याच्यामध्ये नियोजनबद्धता असणं आवश्यक आहे. क्या होतं काम नहीं करोगे तो chances that you may crack. And I can say with my own empirical observation, around 20% students, they lose the track. Okay, it happens. It happens unknowingly. So in order to prevent that from happening, we must follow a systematic process. And the third one is a organize. ज्याला मी नियोजनबद्ध म्हणतो. That means keeping all your research record, keeping all your data, keeping all the information that you are gathering, plan to gather, have already gathered, reviewing it properly, then taking the further step. Okay, so a very simple definition. Now, as I said earlier, a research conducted, be it an applicative or be it an academic, it may or may not lead you to the truth. So all researchers, please keep in mind, many of the researchers, especially the academic, are naive. They think that yes, I will accept all my null hypotheses, or I will reject all my null hypotheses, so I get 100% truth at the end of my thesis completion. Academically, ये सब मंजूर है साहब, बट आप अगर उसको हायर लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड पे वो रिसर्च लेके जाते हैं तो किसी भी रिसर्च में सच्चाई सामने नहीं आती है. नहीं आती है. आएगी, मैं ये नहीं कहता हूँ बिल्कुल नहीं आएगी. It will be 80%, 90%, 95%, no more than 95%. Okay, so kindly understand that these 5 years that you are expected to spend, it is a journey, it is an exercise. Okay, और ये 5 सालों में आप कई पहलुओं का सामना करेंगे, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, उसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, उसके रिकमेंडेशन देने की कोशिश करोगे, बट आप सच्चाई के पास कतई नहीं पहुंचोगे. हाँ, देर आर एक्सेप्शंस, आई एम नॉट डिनाइंग at all. There are exceptions, there are cases where in one shot they reach the truth, but these are extremely rare. I would say probably 10 cases in 10 lakh. So that percentile is highly rare. What the academic research emphasize
is basically whenever a candidate is conducting his or her doctoral dissertation, it should address the long-standing problems in a specific domain. This particular notion was put forward by our DNHRD minister in 2009, Kapil Sibal. He invited all the vice chancellors to Delhi, and basically they said that, and that's where the quality research का जो एजेंडा था वो भी सामने आया, बट ये एक मुद्दा रखा गया कि आप जिस एरिया में आपकी यूनिवर्सिटी है उस एरिया के जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको कैंडिडेट का रिसर्च करके उसको एलिवेट करने की कहीं ना कहीं पीएचडी के रिसर्च में एक कोशिश होनी चाहिए, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू डू। और जो कि आज हम देख रहे हैं कि नागपुर, अमरावती, गोंडवाना, ये हमारी 3 विदर्भ की यूनिवर्सिटी है, इसमें हजारों लोग रजिस्टर्ड होते हैं थीसिस के लिए। तो कहीं ना कहीं इनके टॉपिक्स में से अगर कोई हमारे एरिया की प्रॉब्लम अगर हम एड्रेस कर पाए और उसको रिप्रेजेंट कर पाए, केवल एड्रेस करना इज वन इशू, टू रिप्रेजेंट इट and getting necessary policy changes or getting necessary interventions would really give a complete meaning to the research, right? Like all we know, the area which we call it as a Vidarbha, I presume most of you are from Vidarbha and you are conducting your PhD in one of the university, either in Vidarbha area or Maharashtra or some other part of, India, if it is the case maybe. So there are some long-standing problems, like in the decades of 80, it was the what you call हुंडाबळी. मला हुंडाला इंग्रजीचा शब्द आठवत नाही, पण ते काय एक्सटॉर्शन वगैरे करतात. So that was the issue. Then if we look at contemporary times of after 2000, air pollution, okay, the farmer's suicide, the drought, the unorganized farmer, dryland farming. Then in urban areas, you have traffic congestion, work-life balance issue. So these are out of hundreds of problems that we are dealing, and these problems will evolve. Now, recently, a couple of years ago, a study was conducted at a Yale University, how the social media and access to smartphone have altered the mind and concentration of the youngsters. I think their time, I think the age group they were dealing was around 14 to 21, if I'm not wrong. So that is again valid here. आपल्याकडे आज ऍक्सेस टू स्मार्टफोन अँड इंटरनेट इज व्हेरी मच प्रिडॉमिनंट. मग या सवयींचा त्यांच्यावर काय परिणाम झाला आहे तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, तो फक्त नागपुरचा नहीं है. सो अभी आपका जो भी टॉपिक आपने लिया है, आई एम होपफुल कि वो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम में एड्रेस करता होगा. और आगे चल के जब आप गाइड बनोगे तो काइंडली कीप दिस इन माइंड. A candidate should address the current problem. Say, for example, today's the gender-related problems are the Me Too, harassment. These are again the universal problem. I won't say that it is there only in Nagpur. These are universal problems. So, if anything a research scholar can address to it, and if something can come out of it, then there is nothing beautiful, outcome out of the research, and this is one of the opportunities that you are getting, where you can really work hard, work passionately, work dedicatedly, and come out something which will be useful both academically as well as from the societal point of view. It will be useful to the society. Okay, so next, how this quest for searching this truth has started. We as a human being, we are a very curious species. हम बहुत क्यूरियस है. तो आप इमेजिन कीजिए
कि जब भी ह्यूमन सिविलाइजेशन धरती पर एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ होगा, राइट फ्रॉम दैट वेरी फर्स्ट डे, जो कोई लोग बोलते हैं एडम एंड ईव पहले आए थे, बट साइंटिफिकली हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो क्रैडल है, दैट इज क्लोज टू जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका, जहाँ पे पहले ह्यूमंस पाए गए थे, जो मंकीज और चिंपांजी से डिराइव हुए, जो डॉक्यूमेंटेड किया गया. सो दे स्टार्टेड, then they started making tools, and then they started uh, eating plants, animals, and then they got into farming. ऐसा पूरा ये evolution हुआ है. So we are basically an evolving species, and we are one of the what you call the surviving species. We are very much prone to changes, adoption of changes. तो अगर हम मेडिवल इरा का टाइम लेते हैं, जब कई सारी चीजों की खोज की गई थी, वी आर वेरी न्यू टू द वर्ल्ड ऑफ रिसर्च, बाय द वे, आई मीन डॉक्यूमेंटेड रिसर्च दैट आई एम टॉकिंग. वैसी खोज या जुगाड़ वो तो होते रहे, बट अगर मेडिवल पीरियड से आगे चलते हैं, so it was seen predominantly the authority, the traditions or the customs led to the quest. These were the drivers, and because of these drivers, the people or the kings or the leaders of the clones were instructing to find something, और यहीं से खोज जो है वो शुरू हुई. और ये एक सबसे बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक था. जब आप इमेजिन कीजिए, पाइथागोरस का थ्योरम आया, ज्योमेट्री आई, ट्रिग्नोमेट्री आई, अलजेब्रा आया, वेक्टर कैलकुलस आया, नंबर ऑफ थिंग्स केम अप. इवन if you look at Indian civilization, we gave the zero, Aryabhat. So numerology आई, timing आया, all these things came. And isn't it a beautiful thing कि आज 21वीं सदी में हम ये सब चीजों को देखते हैं, बट ये किसी ने खोजा है ना. तो ये जो खोज है, this will continue. I'm not saying that you have to invent something brand new. Rather, you can put a perspective on something which has been already been discovered. If you look at the medicinal science, the human body itself, if I'm not wrong, in 2019, they found one organ in our body which was never discovered previously. Now, what that organ does or how it is important or least important is another issue to be, debated. Just like appendix जो हमारे शरीर में होता है, वो एक useless ऑर्गन होता है, जिसका कोई काम नहीं होता है, और इसीलिए उसका ऑपरेशन वगैरह किया जाता है. तो अभी इनको पता चला कि कोई और एक ऐसा ऑर्गन है जो अभी एक्सप्लोर किया जाएगा. इंटरेस्टिंगली, मेडिसिनल साइंस आप देखिएगा, हर एक ऑर्गन का एक डॉक्टर होता है. वो ईएनटी हो, कार्डियोलॉजी हो, पेडिट्रिशियन हो, हड्डी वाला हो, आंखों वाला हो, वो बिकॉज although we are genetically different, we barely started understanding the function of those organs. Thanks to the color MRI. अभी 25 साल पहले जो कलर MRI जो इंडिया में उपलब्ध हो रहा है, हमको पता चल रहा है कि ऑर्गन कैसे होते हैं. I mean, so it's a vast field. I mean, I can even tell you, in the US, in 2006 or 7, they could find out कि हमारी मेमोरी कहाँ स्टोर होती है. And they could even find out or discover that हम लोग मेमोरी, गुड मेमोरी और बैड मेमोरी में स्टोर करते हैं. मैंने अगर आपको पूछा कि आपकी फलाना फलाना ट्रिप की मेमोरी बताओ, तो इट इज अ टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन माइंड कि हम बुरी चीजों को याद रखते हैं, है ना. बुरी चीजें हमको याद रखती है. अगर आपका कोई जिगरी दोस्त है, उसने कोई एक गलत किया, तो जिंदगी भर आप उसको याद रखोगे. दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो दिस साइंटिस्ट वांटेड टू नो कि क्यों हम बुरी चीजों को याद रखते हैं. नाउ यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस रिसर्च. व्हाट दे डिड, उन लोगों ने ऐसे सैंपल कलेक्ट किए जिन लोगों के ऊपर हादसे हुए थे, जिनको हम बोलते हैं ना डरावने हादसे, जो रात को नींद से उठ
बैठ जाते हैं, उनको वो यादें आती है, और उनकी यादें उन्होंने डिलीट की। अब उन लोगों को ये यादें नहीं आती। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बेसिकली द वर्ल्ड ऑफ रिसर्च इज ओपन। You can do anything you want, right from the ground basic level to a very advanced level. Then the third one is a personal experience, which we call it as a empirical observation or empirical research. And this is one of the second biggest driver of the research. Now, many a time when I go to Amravati or some universities in Vidarbha for my MBA student, I jokingly say to them कि अगर हमारा आइजैक न्यूटन कल्पेश्वर का होता और वो एक संतरे के पेड़ के नीचे बैठा होता और वो संतरा ऊपर से नीचे गिरता, तो हमारे विदर्भ का न्यूटन शायद सोच नहीं पाता कि ये संतरा नीचे क्यों आया। बट दैट एग्जैक्टली आइजैक न्यूटन डिड व्हेन ही लुक एट द फिनोमिना दैट एप्पल इज फॉलिंग डाउन, he became curious, and that curiosity led to the concept of gravity that we are using today, and nobody has challenged that g is equal to 9.8 value till today, है ना। सिमिलरली लुई पाश्चर हो गया, जो हम आज पाश्चराइज मिल्क की बात करते हैं, n number of evidences are there which are the discoveries that purely came out of the personal experience. But what these great human minds did, they quantified that experience. Imagine आइजैक न्यूटन अगर नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मिलकर और बोलता है सर वो एप्पल गिर रहा है, कुछ तो है उसमें, well, that argument would not have been bought by anybody, not even by me. But when he said it is falling due to gravity and that value is 9.8, it becomes a legitimate thing. So, आपको research में, which I always emphasize with my colleagues, you must able to quantify the thing. Otherwise, it purely becomes an opinion or informed judgment, and it doesn't count in the field of research. Now, can you tell me who was the person who said the earth is spherical? कौन था जिसने बोला था धरती गोल है? मैं आपको कई सारे सवाल पूछूंगा, अभी हम लोग ऑनलाइन बोर्ड में है। नॉट गैलीलियो, यू आर क्लोज, नॉट गैलीलियो, Copernicus. कोपरनिकस। व्हाट हैपेंड टू कोपरनिकस? क्या हुआ उसके साथ? काय झालं कोपरनिकसचं? काय झालं? उसको हैंग किया गया था। हैंग किया गया, उसको मारा गया था पॉइजन देके। देयर आर नंबर ऑफ थ्योरीज जो मेरे जानकारी में है कि उसको पॉइजन देके मारा गया वहां के राजा ने, क्योंकि वहां की अथॉरिटी ये समझती थी कि धरती चौकोन है, अर्थ इज अ रेक्टेंगुलर, एंड व्हेन कोपरनिकस पुट फॉरवर्ड हिज argument that earth is spherical and earth is a part of solar system, they called him mad, they called him psycho, and they gone to that extent that you don't deserve to be alive, and they took his life. Why this happened? Because Copernicus could not quantify his opinion. He could not quantify. Had Copernicus been able to convince those people using a quantification technique, then probably he would have survived, and that could have led to many more discoveries, which was unfortunate. So, quantification in research, especially when it comes to the personal experience. Now, I give you another example of Texas A&M University, University of Texas at A&M. So, we all know ये भूत प्रेत रहते हैं. So, exactly the रिसर्च एंगल से मैं बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली भूत और प्रेत ये रिसर्च या साइंटिफिक वर्ल्ड में क्या होते हैं? इट इज बेसिकली assimilation of the energy, because what is the principle put forward by Einstein? आप अगर मेरे व्हाट्सएप पे कभी देखोगे तो मैं वो इक्वेशन हमेशा लगा के रखा हूँ, E is equal to mc square. That means
energy can neither be created nor be destroyed. It goes from one form to the another form. सो अब आप इमॅजिन कीजिए प्रत्येकाच्या शरीराभोवती एक वलय असतं ऊर्जेचं. एव्हरी वन ऑफ अस वी कैरी दैट स्पीयर ऑफ एनर्जी अराउंड अस. इसलिए कभी आपको हाईली एनर्जेटिक लगता है, कभी लो एनर्जेटिक लगता है. और मैग्नेटिक पावर भी होती है. आपने वो ओ माय गॉड इंडिया में भी देखा होगा, कुछ लोगों के शरीर पे किले विले भी चिपक जाते हैं. सो वी हैव एनर्जी. द एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी, molecules, particles. So we can't deny that fact. That's a scientific argument. Now, when a person dies, the body is left back, and that energy it goes somewhere. I'm talking scientifically, जिसको हम philosophical language में आत्मा बोलते हैं. So now the researcher at ANM, ये पहला नहीं हुआ था, इसके पहले भी बहुत हो चुका है इसके ऊपर रिसर्च. They wanted to prove that some Atma lives in a haunted house. ये आप YouTube पे भी शायद देख सकोगे, वो उन्होंने अपलोड किया हुआ है. ये काफी पुराना किस्सा है, 1998 या 7 का किस्सा होगा ये. They went there with the various tools on a no moon night, अमावस के दिन, and in that particular haunted house they could see a bunch of energy. वो infrared कैमरा में वो आपको एनर्जी, ऐसा व्हाइट सर्कल जो ऐसा थोड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, और वो घूमता है. इट ट्रेवल्स. सो दे कुड डॉक्यूमेंट इट एंड दे कुड से दैट हाँ, भूत प्रेत होते हैं, बट दे आर नॉट सो कॉल्ड फिजिकली प्रेजेंट, बट दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. नाउ हाउ दैट एनर्जी, हम लोग हमारे इंडिया में तो 7 लाख गांव है हमारे देश में. कई लोग काला जादू पे विश्वास रखते हैं, कई लोग अंधश्रद्धा पे विश्वास रखते हैं. मैं ये सब चीजों को मानता नहीं हूँ. वो बोलते भूत प्रेत की बाधा हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता सर. इट इज अ एनर्जी. व्हेन यू लुक एट साइंटिफिकली, एनर्जी, वो एनर्जी हो सकती है आपके घर में भी होगी. मैं कई बार यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो वहां पर भी कई आत्माएं भटक रही होंगी, जिनको कभी ख्वाहिश होगी की मला हे बनायचं आहे, मला ते बनायचं आहे. असंतुष्ट आत्मा फिलॉसॉफिकल भाषेमध्ये, ते काही त्रास देत नाही. पण काही लोकांचं असंही म्हणणं आहे की काही चांगले आत्मा असतात, काही वाईट आत्मा असतात आणि ते त्रास देतात. आय कांट डू दॅट स्टॅटिस्टिकली और सायंटिफिकली. सो पर्सनल एक्सपिरियन्स, अँड दिस इज व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन टू आर्किमिडीज. काय झालं होतं आर्किमिडीजला, सांगा बरं. व्हॉट हॅपन टू आर्किमिडीज? क्या हुआ था आर्किमिडीज के साथ? एनीवन? सर जब वो नहाने गया हुआ था बाथटब में, जी. हाँ तो सर जब बाथटब में बैठा तो पानी बाहर आ गया था, तो उसके ऊपर से जी. उसने ये मतलब एक मतलब सर्च किया था कि किसी वस्तु को पानी में उसका जो साइज रहता हम्म. बाहर निकल जाता. Okay, okay. So you are Eureka, partially Eureka. correct. You are partially correct. Here, what happened when he got into a bathtub? He could observe that the volume of water displaced by his body was more than the weight of the body. So he became fabulous. अरे यार, अगर मेरा वजन 60 किलो का है तो मैं जब पानी का टब जो पूरा भरा हुआ है, जब उसमें मैं उतर के लेटता हूं तो वो टब में से 60 किलो से ज्यादा इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर क्यों जा रहा है? ऑफ कोर्स ही वाज intrigued by this phenomena and he started doing research on that. He started finding answers to why this phenomena is happening. And then that led to multiple number of innovations or inventions. So Archimedes' principle is exactly, somebody has said, is correct. आपका वेट से पानी बाहर आता है, बट वो ज्यादा आना चाहिए. So there is a principle of buoyancy, जिसको हम कहते हैं ना, buoyancy principle. buoyancy principle का एप्लीकेशन क्या हुआ
की आर्किमिडीजच्या सिद्धांताच्या आधी पाण्यावर फक्त लाकडाची जहाजं असायची, कारण लोकांना हे वाटायचं की लोखंड डेन्स असतं आणि ते पाण्यामध्ये डुबतं, म्हणून लाकूड हे पाण्यावर तरंगतं. द मोमेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल वॉज पब्लिश साइंटिफिकली, लोहे के जहाज बनना चालू हो गए. यू इमेजिन, कभी आप एखादी समुद्र में बड़ी नाव देखते हो, INS विराट जैसी, अगर वो 5,000 टन का जहाज वहां खड़ा है पानी में, तो इसका मतलब वो 5,000 टन के इक्विवेलेंट और उससे ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए वो फ्लोट हो रहा है. सो एनी फिनोमिना दैट यू सी, एज ए रिसर्चर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. वो फिनोमिना के पीछे का साइंटिफिक थ्योरी आपको मालूम होना चाहिए कि क्या उसके पीछे का थ्योरी है. ये सब चीजें, इसको हम एक्यूमेन कहते हैं, ये आपको आपके रिसर्च करने में काम आएगा. हर स्टेप पे आपको सवाल उठने चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों देख रहा हूँ, मैंने अगर ऐसा किया तो क्या होगा, मैंने वैसा किया तो क्या होगा. पॅशन, तुम्हाला संशोधन वेडहून झपाटून केलेलं पाहिजे, झपाटले पाहिजे तुम्ही. 24 तास ते विचार तुमच्या मनात आले पाहिजे, तरच तुम्ही एका उत्तम दर्जाचा प्रबंध सादर करू शकाल. नाहीतर डिग्री तर सगळ्यांनाच मिळेल हो. ते नाकात चेंबूड असलेले मी PhD पाहिले, त्याने विचारले का सांग रे भाऊ काय लिहिलं तू, त्याला काहीच कळत नाही, पण ते मिरवते का मला डॉक्टर म्हणा तुम्ही म्हणून. तर तुमच्यावर डिपेंडेंट तुम्हाला काय करायचंय. तुम्ही जर खरोखर यूजुअली 10-20% बहुत अच्छे बन जाते हैं और आगे रिसर्च करते हैं. देन देयर इज अ इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग. अभी मैं एक चीज आपको बताना भूल गया. एट द एंड ऑफ आपका ये जो भी 7-8 दिन का प्रोग्राम है, देयर विल बी एग्जामिनेशन, and all of you must pass that examination so that you get that certificate and then you are eligible to submit your dissertation or thesis to PhD cell. So मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें आएगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं एम्फेसिस करूंगा. सो दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा. एंड एक साइंटिफिक इंक्वायरी, इसको रियल लाइफ में रिसर्च कहते हैं. One of the thing as a researcher you should have is an imagination. Okay, imagination. You imagine something. Now I share my own experience. Way back in 1994-95, we were doing our MBA in Europe, and one fine day, one faculty from Oxford, he came. हमारे 3 घंटे का क्लास होता था. आए सर. So we were all new, and instead of taking a class, that faculty said, please tell me what kind of dreams you have. तो वी थॉट कि यार ये फैकल्टी को क्या हो गया, इसको आज टाइम पास करना है, पढ़ाने का नहीं है. बट जो कि वो रेप्यूटेड फैकल्टी थी, सब लोग अपना अपना ड्रीम बताने लगे. So there was this one young lady sitting next to me. She was from mainland China. She stood up and she said her dream is that we should have an aircraft जो ऊपर 35,000 फीट पे फ्लाई हो रहा है, और अचानक उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, या कुछ इंजन का प्रॉब्लम आ गया, या आग लग गई, या कुछ भी हो गया, तो पूरे के पूरे लोग ना मरे नीचे आके. सो उसने बोला कि हर ड्रीम इज दैट इन केस ऑफ एनी अनअवॉइडेबल फॉल्ट, द एयरक्राफ्ट मस्ट स्प्लिट इनटू 3 पार्ट, and all the 3 parts should come down by parachute on the land, so that जिस पार्ट में हादसा नहीं हुआ है वो पार्ट के लोगों को बचाया जा सकता है. उसने वो बोला. So like just the dream of many students, she also put it forward. जब मैं 2012 को इंडिया में लौटा और मैंने चेक किया कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट क्या कर रही है, तो शी इज अ साइंटिस्ट इन कनाडा. She took a patent on her idea. अब उसके ड्रीम का हवाई जहाज बन रहा है. That is called as the imagination. She took her imagination from 94 till 2012. She patented her, of course. उसकी टेक्निक को उसने पेटेंट किया. She convinced the Federal Aviation Authority, and probably they are now making a prototype where it will be tried. So as a researcher, you must have certain kind of imagination.
वो क्या होगा दैट आई कांट टेल यू, बट आप अगर जो भी टॉपिक पे अभी काम कर रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं एक बड़ा सोच के अगर आप चलोगे तो इट विल सर्टेनली हेल्प यू ऑन योर एक्सरसाइज. सो एज आई सेड अर्लियर, द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, उसके जो एट्रीब्यूट थे उसका ये ज्यादा वाला एक्सप्लेनेशन है. सिस्टमैटिक मतलब क्या? प्लान, आइडेंटिफाई, design, collect, and evaluate. Okay, so that's how you have to proceed in your research. Without planning, without identification, without design, you can't collect the data. Many a time I have seen a candidate is more worried about collecting the data and analyzing it and then writing the chapter uh, backwards. Now, it is like, as I said, a recipe. It is like what you call as a food that we eat. Say I'm offering you a 5-course meal, then we start with the soup, the appetizer, the main course, the dessert, so on and so forth. रिसर्च करते समय भी ये आदत आपको लगा लेना पड़ेगा. देन लॉजिकल, तर्क. आइन्स्टाईननी तर्क लावला, आर्किमिडीजनी तर्क लावला, लुई पाश्चरनी तर्क लावला, हजार लोकांनी तर्क लावले की हे असं का? वाय इट इज लाईक दॅट? द मोमेंट यू आस्क युअर सेल्फ अ क्वेश्चन, the path towards enlightenment start. And in many of my other lectures which I deliver, one of my the greatest person that I'm deeply fond of is a Siddhartha. उनके भी मन में सवाल आए, मौत क्या है, दुख क्या है, दर्द क्या है, लोग वॉर पे क्यों जाते हैं, n number of questions came. He sat down under the Bodhi tree, he got the answers and he was transformed from Siddhartha to Gautam Buddha, right? Logical. इसीलिए आपके थीसिस में अगर लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं होगा तो वो मेरे लिए कचरे का डॉक्यूमेंट है. आपको डिग्री मिल जाएगी, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी पीयर्स केस में, बट आपने ऐसा कोई आर्गुमेंट उसमें बिल्ड किया कि जिससे एक तो लोग एनलाइटन हो जाए, एक्साइट हो जाए, या एकदम व्हाट यू कॉल, मैं डर नहीं जाऊं कहूंगा, बट आउट ऑफ द बॉक्स आपने अगर आर्गुमेंट डाला तो लोग अट्रैक्ट होते कि ये रिसर्चर ऐसा क्यों सोच रहा है. सो लॉजिकल. नाउ विद इन द लॉजिकल, either you examine the procedure, if you are conducting a field work, if you are conducting a laboratory work, or if you are taking a conceptual topic and reading lots of literature, you examine that, and when you conclude it, you evaluate those conclusions. And based on your evaluation, you build a logical argument. हे होतं. त्याच्यामुळे माझी सगळ्यांना नम्र विनंती आहे की तर्क टाका बरं का संशोधनामध्ये, नाहीतर ती डिग्री तुम्हाला मिळणार हो, तुमचा वायवा झाल्यावर ते लोक हसतात माहिती का, पण तिथे तुमचा गाईड आणि एक्झामिनर बसला असतो, त्याच्यामुळे काही म्हणता येत नाही, पण ते म्हणतात चल हो गया, इसका भी डिग्री हो गया. आपल्याला तशी डिग्री पाहिजे का? नाही. आपण ताठ मानेनी त्या खोलीतनं बाहेर गेलं पाहिजे, लोकांना वाटलं पाहिजे की यस ये काम. आणि वी डू कम अक्रॉस सम जीनियस स्टूडेंट्स इन पीएचडी वाइवा, हमको लगता है यार बेहतरीन काम किया, अच्छा काम किया, अलग टाइप से काम किया, उसके ऊपर आप एम्फोसिस कीजिए. देन थर्ड वन इज एम्पिरिकल. अगेन सेम थिंग, either you observe something, you collect the data, that observation may be in a metasphere. जैसे मैं माटे चौक में जाके खड़ा हुआ, मैंने कुछ ऑब्जर्व किया और मैंने 1 साल ऑब्जर्व किया और मैंने उसके ऊपर लिखना शुरू किया. और आई एम इन अ laboratory, physics laboratory in Institute of Science. I'm conducting certain experiment there, and I'm concluding towards my understanding of the topic. So empirical, this is the biggest form of research that we all do. फिर है reductive. इसमें क्या होता है, although it may not be the direct form of research, but it is what you call, it is born where the candidate is doing something, and while doing it
he or she basically come across certain parametric relationships, and at the end of conclusion the candidate is establishing that parametric relationship from the data he or she has collected. त्याला रिडक्टिव्ह म्हणतो आपण. So it is again a post event phenomena. You collect and then you derive, because without collection of data you can't derive the relationship. Now here most everybody does it, सगळ्यांना हे करावंच लागतं आणि आपण तेच करतो कारण आपल्याला स्टॅटिस्टिकल टूल लावावे लागतात. अब यहाँ क्या होता है, मेनी अ टाइम candidate knowingly or unknowingly commits an honest mistake. Mind well, I am saying that knowingly or unknowingly, and it's an honest mistake. होती है गलती. I am not saying any research is without mistake. Even मैं अभी भी जो काम करता हूँ गलतियां होती है तो वो पता चलता है कि यहाँ उस काम में ये गलती हुई थी. So while establishing the relationship, the candidate must be very alert on what kind of relationship he or she is establishing. I give you an example which I came across in one of the universities in Maharashtra. On the day of Viva, the examiner came from some remote city. There were no planes and he came on a train and car and so on and so forth. Anyway, it was an economics topic. So candidate was debating about the rising disposable income issue. So she put forward that अगर आपका disposable income बढ़ जाता है तो आपका शुगर कंजम्पशन बढ़ता है, और आपका शुगर कंजम्पशन बढ़ता है तो आपका वजन बढ़ता है. So what she said, A leads to B and B leads to C. Therefore A leads to C, ऐसा उसने इंटरप्रेट किया जो कि एग्जामिनर के पढ़ने में आ गया. तो एग्जामिनर ने पूछा कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम लीड्स टू द इंक्रीज इन वेट. नाउ unless and until there is a data to back up this particular argument, then this argument stands valid. Otherwise it is null and void. So the candidate agreed or accepted that it was an honest mistake. She kind of overlooked. तर तुम्ही जेव्हा रिलेशनशिप टाकता, तुम्ही जर मला विचाराल ना, फॉर दी सायन्स पीपल दी कंक्लूजन रिकमेंडेशन चैप्टर इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर साइंस के लोगों का. बाकी सबके लिए ये बहुत बड़ा हेडेक होता है, बिकॉज अगर आपने कंक्लूजन रिकमेंडेशन सही तरीके से अगर नहीं डाले तो उसके कुछ और मीनिंग निकाले जा सकते हैं रिसर्च वर्ल्ड में. सो इन अ रिडक्टिव वी हैव टू बी कॉशियस on what kind of relationships we are trying to establish from the data. Now, in a world of science, there are some controversial relationships. मतलब recent, although I am not a medical or pharmaceutical background person, but I do read on and off certain papers on Google Scholar. So one of the papers which I came across was about the insulin. जो हमारा पैनक्रियाज होता है बॉडी में, जो सेग्रीगेट करता है और वो उसका कम ज्यादा हो गया फंक्शन तो इंसुलिन का मात्रा कम होने लगता है, या वीजा भी अगर पर्सन ज्यादा शुगर कंज्यूम करने लगा तो वो इंसुलिन अपूरे राहतं, मग ती साखर तुमच्या रक्तात येतं. सो एंड सो. एक हम डायबिटीज का, एक इसको डायबिटीज बोलते हैं. बट वन ऑफ द पेपर विच सेड दैट although it is very well understood that the lack of insulin leads to the rise in blood sugar, so as a treatment you administer a patient insulin. तुम्ही बघा आमच्याही खानदानामध्ये हे तर सगळ्यांना मधुमेह आहे, सगळे लोक ते इन्सुलिनचे इंजेक्शन घेत असतात. वो पेपर में बोला था इट इज अ रॉन्ग ट्रीटमेंट, इट डज नॉट सब्सटेंशिएट द फैक्ट, जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं. अगर आपकी गाड़ी 2 किक में चालू नहीं हो रही तो हम चोक देते हैं उसको. सो कॉज इज गाड़ी चालू नहीं हो रही, इफेक्ट सॉरी कॉज
गाड़ी चालू नहीं हो रही तो उसका सॉरी गाड़ी चालू नहीं हो रही ये इफेक्ट है, तो उसका रेमेडी क्या करते हैं, हम गाड़ी को चोक देते, चोक देने के बाद कार्बोरेटर को फ्लड करते और वो गाड़ी चालू हो जाती। अगर आपने अभी जो नई होंडा एक्टिवा 6G आई हुई है तो उसमें चोक ही नहीं है, वो डायरेक्ट इंजेक्शन से चालू होती। सो कमिंग टू द पॉइंट, द राइज इन ब्लड शुगर इज ड्यू टू अ पुअर secretion of insulin from the pancreatis is one of the proven scientifically theory. But administering excess insulin to kill that sugar or asking the patient to consume less sugar or less carbohydrate is a prescription. तो इसके ऊपर वो जो पेपर कह रहा है ये रिलेशनशिप गलत है, गलत इन द सेंस कि पेनी नॉट पेनिसिलिन, इंसुलिन इज द ओनली क्यूअर टू किल द शुगर. मग तुम्ही बघाल मग एक्सरसाइज करा, कॅलरी बर्न करा, धावा वगैरे 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 हे येतं. सो रिलेशनशिप आप जब डेटा से एस्टैब्लिश करोगे, माय हम्बल रिक्वेस्ट यू टू यू इज दैट थिंक 100 times बिफोर यू आर पुटिंग इट. और थीसिस में तो वो कोई पढ़ेगा भी नहीं, बट आपने मान लो एक आधा पेपर लिखा उसके ऊपर और गलती से वो पेपर अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ, आपको क्वेरीज आती है, बाय द वे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्वेरीज आती है आपको कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आपके पास वैलिड आर्ग्यूमेंट है क्या, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है क्या. एंड द लास्ट वन इज अ रिप्लिकेबल, वेयर you are recording actions either in an experiment or in a wild. You are looking at the chimpanzee, you are looking at the monkeys, anything in a metasphere you are recording. Clear? आगे चले. Now I share with you some very interesting what you call observation. ये 2018 से डाला है क्योंकि हम लोगों ने नागपुर यूनिवर्सिटी में 2018 जनवरी से PhD वर्कशॉप शुरू हुए. तो उस वक्त वो बैच थी, शायद तीसरी चौथी बैच होगी, हमने जनवरी से शुरू किया. तो एनीवे दिस इज स्टिल वैलिड. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट in a science, if you ask me honestly, scientific research is a clumsy, complex. I do understand that, but once it is conducted properly, then interpretations become very very easy. Conclusion interpretations are rather easy. On a non-science subject, it becomes a big task, and this is a classic example of that particular research. Now, what was the research? जर्नल ऑफ नेचर कम्युनिकेशन में यूके में हुआ था. उन्होंने वो रिसर्च का फाइंडिंग ये था कि कोई अगर चश्मा लगाता है तो इसका मतलब उसके पास हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है. ये हम सब लोग जानते हैं, है ना. कोई भी चश्मा वाला होगा तो बोलते कि हाँ होशियार असेल कदाचित, जनरल नोशन है ये. अब देखो उन्होंने क्या किया. What they did at the University of Edinburgh, they analyze the both cognitive and genetic data of almost 300,000, मुझे 3 लाख सैंपल between the age of 16 to 102. And they got that sample gathered by the UK Biobank, and there was charge and cogent consortia. So they looked at the cognitive and genetic data also. ये 3 लाख लोग जो चश्मा लगाते थे, उनका फाइंडिंग क्या था कि चश्मा लगाने वाला इंटेलिजेंट, इनको ये प्रूव करना था. सो दिस वाज द डिजाइन मेथड, दिस इज अ मेथड दे अडॉप्टेड. व्हाइल दे वर एनालाइजिंग, their analysis found that there is a significant genetic overlap between cognitive function, reaction time, and many health variables, including eyesight, hypertension, and longevity. That means these 300,000 sample, which was analyzed for the genetic and cognitive data, they found that there is a genetic overlap. Among what? Among these functions. So they say that specifically people who were more intelligent were almost 30% more likely to have genes which might indicate they need to wear the glass. आता गंमत बघा, लोक चष्मा कशा करता लावतात हो, जेव्हा आपली आयसाइट खराब होते.
आमच्या घरामध्ये मी असा एकटा आहे ज्यांनी वयाच्या 13व्या वर्षी चष्मा लावला आणि ज्याचे वयाच्या 16व्या वर्षी केस पांढरे झाले. बाकी असं जेनेटिक आमच्याकडे काही नाहीये. आता मला चष्मा का लागला? कारण मी अंधारात वाचायची मला सवय होती. त्यावेळेस टीव्ही वगैरे आमच्याकडे नव्हता, आम्ही गरीब होतो. पण मला वाचनाची सवय आणि अंधारात कुठेतरी वाचायचं, लाईट वगैरे ते पिवळ्या रंगाचे लाईट असायचे, उसके वजह से मेरे को चश्मा लगा. ये रिसर्च में पता चला कि 1/3 सैंपल जो था और क्लोज टू 1/3 इनके पास जीन्स है. दैट मीन्स देयर इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर which might tempt a person to wear the glass whether or not he or she is intelligent or not. But उनको जो 30% इंटेलिजेंट थे, आता गम्मत बघा, 30% इंटेलिजेंट में जीन था कि भैया आप इंटेलिजेंट भी हो और आप में जीन भी है. जीन कौन सी है कि आपको चश्मा लगाने की कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी. अब आगे देखो क्या होता है. अब जैसे मैंने बोला कि मोर इंटेलिजेंट मे बी लिंक टू द पुअर आईसाइट, बट पुअर आईसाइट का मतलब ये नहीं कि आपको बाकी का हेल्थ बेनिफिट आपका निगेटिव है. दे ऑल्सो फाउंड दैट जिसका आईसाइट पुअर है उसके बाकी के हेल्थ पैरामीटर बहुत अच्छे हैं. आपने कभी, मैं जब फॉरेन में था तो मैं ब्लाइंड सोसाइटी के लिए, ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी के लिए काम करता था. जब भी हॉलिडेज या त्योहार वगैरे होते थे हम लोग व्हॉलेंटियर बनते थे. तर मला हे कळलं हे जे अंध व्यक्ती असतात किंवा डम एंड डेफ असतात, बहिरे मुके जे असतात, इनके बाकी सेंसेस बहुत जबरदस्त रहते. मतलब जो हम इस्तेमाल, वो वैसा क्यों होता? क्योंकि उनके कुछ सेंसेस मिसिंग होते तो वो बाकी सेंस से अपना काम चलाते. जैसे आप अगर एनिमल किंगडम में देखोगे तर कोणतेही जनावर बोलू शकत नाही. त्यांची दृष्टी सुद्धा बऱ्यापैकी वीक असते, पण त्यांची ऐकायची शक्ती, त्यांची स्मेलिंगची, हे जे सेंसेस असतात आपले 5, तो वो होता है. तो इसमें भी ये पता चला कि आपका आई सेंस अगर खराब है तो आपको बाकी के पॉजिटिव बेनिफिट्स है. नाउ the researcher found a negative correlation between cognitive function and number of health problems, including angina, lung cancer and depression. तो ये 3 पैरामीटर पे उनको पता चला कि आपके ब्रेन का जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है और आपके शरीर की ये जो समस्या होती है वो कोरिलेट नहीं होती. और इसीलिए उन्होंने बोला कि these are simply correlation and not conclusive link. माइंड वेल. हाँ, आप सब लोग रिसर्चर हो. हम क्या करते हैं, कोई भी रिसर्च का हाइपोथेसिस प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स इज अ कोरिलेशन. है ना? और कोरिलेशन से हम बताते हैं कि वो कोरिलेट होते कि नहीं होते, और फिर हम उसका सिग्निफिकेंस देखते हैं. राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कोरिलेशन इज नॉट अ कंक्लूसिव लिंक. आपके पीएचडी के थीसिस में वो हाइपोथेसिस कोरिलेशन पे ओके हो जाएगा, नो ऑब्जेक्शन. आगे चल के अगर आप ऐसा बोलते हो एक हायर लेवल ऑफ रिसर्च पे, तो आपको ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा, द रिसर्चर इज मेकिंग अ फेयर एंड जज्ड statement that the correlation does not constitute a conclusive link. हे अत्यंत महत्वाचं वाक्य आहे बरं का. मला हे सांगा, कोरिलेशन की वैल्यू कितनी होती है? कोरिलेशन की वैल्यू कितनी होती है? सांगा रे. सुप्रिया गेडाम, सुमित जुनागडी, सुजाता भेले, सांगा सांगा, कोणी सांगा. कोरिलेशन की वैल्यू कितनी होती है? सर 1 असते. एक Hello? असते. हाँ, ऐकू आलं सुप्रिया. So the value of correlation that we use in the research
is from +1 to -1, and at the center is a 0. So +1 means perfectly positive correlation, -1 means perfectली नेगेटिव कोरिलेशन, है ना। मैं अभी आपको और सिंपल एग्जांपल देता हूं जिससे आपको कोरिलेशन क्यों कंक्लूसिव नहीं होता है जो आपको पता चलेगा। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैरिड, अनलाइक मी विच इज फॉर्चुनेटली सिंगल एंड हैप्पी। तो आपने जब शादी की होगी, शादी के पहले हमारे हिंदू ट्रेडिशन में पत्रिका मिलाई जाती है लड़के और लड़की की, और वो पत्रिका में कुछ गुण देखते हैं वो 35-36 आय डोंट नो कितने होते हैं, आणि ज्यांचे जास्ती गुण मॅच करतील त्याचा टाका भिडवला जातो, उसकी शादी की जाती है। सो व्हाट the matchmakers are doing in ancient time and even in today is to find a compatible partner for either a bride or a groom. अब मुझे बताओ, आपके शादी में अगर आपके आपके पत्नी से या पति से पूरे 36 में से 36 या 35 में से 35 गुण मिले होंगे, आपका झगड़ा नहीं हुआ क्या? हुआ ही होगा। आपके विचार अलग नहीं क्या? हुए होंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट ऑल्दो आप पत्रिका वगैरह मैच करके ये करते हैं, यू कैन नॉट सब्सटेंशिएट। इसका मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बोलता हूं। मेरे कुछ सहेलियां थी जो मांगलिक थी, मंगळ पत्रिकेत मंगळ, मग मांगलिक नवरा शोधा, मग मिळाला नहीं तो मग गैर मांगलिक से शादी की तो झगड़े होते। ऐसी मेरी 3 सहेली है जिसमें कि 2 अमेरिका में रहती है, बम्बई में रहती है। इन्होंने लव मैरिजेस किए नॉन मांगलिक से और खुशी से जी रहे हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। सो मैं जब ये देखता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आई एम चैलेंजिंग एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस इटसेल्फ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर दैट yes they establish the correlation, but I am confidently saying that it is not a conclusive link. You can't substantiate anything from correlation. It is merely a number. हम जब रिसर्च में किसी चीज का कोरिलेशन निकालते हैं, वो एक नंबर होता है, वो एक नंबर होता है, और वो नंबर मुझे क्या बोलता है कि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है। इसके आगे मैं क्या बोल सकता हूँ साहब? I have nothing more to say. So ये जिसको हम सेकंड थर्ड जनरेशन रिसर्च बोलते हैं ना, ये चलता है उसमें। बट आप अगर 4G 5G 6G लेवल का रिसर्च करने जाओगे आगे चल के, पोस्ट डॉक रिसर्च स्कॉलर बनोगे, रिसर्च फेलो बनोगे, उस समय आपको अलर्ट होना है ना। हाँ, मेरा ये कोरिलेशन ऐसा बता रहा है, बट मैं कंक्लूड नहीं कर सकता कि ये ऐसा ही होना चाहिए। गॉट इट? सो उन लोगों ने आगे चल के ये बताया कि देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस दैट वेयरिंग द ग्लास, वेदर यू नीड इट और नॉट रिक्वायर्ड इट, मेक पीपल थिंक दैट यू आर इंटेलिजेंट। एंड ऑल्सो नंबर ऑफ स्टडीज फाउंड दैट जो लोग चश्मा पहनते हैं दे आर परसीव्ड एज स्मार्टर, मोर डिपेंडेबल, इंडस्ट्रियस एंड ऑनेस्ट, है ना। आपको अगर लिफ्ट लेना है और कोई एक काला कुला दाढ़ी बढ़ाए हुआ आड़े टेढ़े बाल वाला एक आदमी आता है हट्टा कट्टा और बोलता है मैडम चलो मैं आपको आगे के चौक पे छोड़ता हूँ, प्रोबेबली यू विल गेट स्कैर्ड। बट अगर कोई दुबला पतला चश्मा लगाए, बाल वाल सही बनाए और बगल में एक बैग लगाई और माइंड उन्होंने बोला कि आम्ही तिकडे चालू आहे, तुम्हाला चलायचं तर चला, मी सोडू शकतो। सो ट्रस्ट हम एस्टैब्लिश करते हैं बेस्ड ऑन द आउटर लुक्स ऑफ अ पर्सन, राइट। हैविंग सेड दैट, चश्मा लगाने वाले मर्डरर भी थे, चश्मा लगाने वाले चोर भी थे, और चश्मा लगाने वाले ने बहुत कुछ किया हुआ है। तो ये परसेप्शन होता है। तो अगर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसे परसेप्शन की बात करता हूं, तो वो केवल एक नॉन कंक्लूसिव परसेप्शन माना जाता है। मैं अगर उसे क्वांटिफाई करूं तो प्रोबेबली मेरे रिसर्च की अकॅडमिक व्हॅल्यू मैं बढ़ा सकता हूँ। गॉट इट? आता लक्षात ठेवायचं, तुम्ही जे काही कोरिलेशन टेस्ट कराल तुमच्या थिसिस मध्ये ते नॉन कन्क्लुसिव्ह आहे असं लिहायचा
एक अटेम्प्ट करायचा बरं का, दॅट लिफ्ट युअर स्टेटस. तो आप फिर पता चलेगा कि हाँ ये इट इज अ नोन फैक्ट कि मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ. महाराष्ट्रातले किंवा भारतातले सगळ्यात उत्तम स्टॅटिस्टिक्सचे जे शिक्षक आहेत ते आपल्या वर्धातले आहेत. ते एका मोठ्या पदावर मोठ्या विद्यापीठात खूप मोठे कामं करतात. म्हणजे इज अ जिनियस. त्यांच्या एका कार्यक्रमात मी असा प्रश्न विचारला होता, तेव्हा त्यांनी मला रागवलं होतं. ते म्हणे कोरिलेशन काहीही सांगत नाही. उस दिन के बाद मैंने कोरिलेशन के ऊपर काफी कुछ पढ़ा और मुझे भी पता चला यस इट इज प्योरली अ नंबर दैट टेल्स यू नथिंग. करेक्ट. तो आपको भी ध्यान में रखना है. बहुत अच्छा कोरिलेशन है तो बहुत एक्साइट नहीं होना है, बहुत लोअर कोरिलेशन है तो डीमोटिवेट भी नहीं होना है. जैसे आप अगर ब्लड शुगर अगर टेस्ट करने गए और आपकी फास्टिंग शुगर बहुत कम आती है और आप बहुत एक्साइट हो गए, और पोस्ट मील शुगर अगर बहुत ज्यादा आ गई तो बहुत डिप्रेस हो गई, वो इंडिकेटर है. उसके पीछे हजार वजह होगी कि वो कैसा क्यों है. तो हमको उसके डीप में जाना है. सो ऑलवेज मेक अ हैबिट ऑफ गोइंग डीप. आप में से अगर कोई साइंस के लोग हो गए, कोई कंप्यूटर साइंस के हो गए, तो जस्ट इट इज एन इलस्ट्रेशन, नॉट नेसेसरीली. अब टॉपिक कौन से टॉपिक पे रिसर्च करना है, जिसको साइंस में लैंडस्केप बोला जाता है. ये लैंडस्केप धीरे धीरे चेंज होते हैं, क्योंकि साइंस इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग. टेक्नोलॉजी इज अ वेरी वेरी फॉरवर्ड लुकिंग. इन स्ट्रीम में रिसर्च करने के लिए कैंडिडेट को जो करंट लैंडस्केप है उससे वाकिफ होना जरूरी है. ये डेटा आपको IEEE और ACM के वेबसाइट पे फ्री मिलता है. ये अपडेट होते रहता है. तो ये 20 साल का डेटा है, 1990 टू 2010. तो 10 में क्या था? कंप्यूटर मेथोडोलॉजी, लॉजिक. ये नीचे का पिलर, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन. ये सब पीक कब हुए? 2008 और 9 के बीच में ये पीक हो गए. तब तक ये 1 में ऊपर चले सब, और फिर अभी ये धीरे धीरे नीचे आ रहे. वैसे ही आप अगर IEEE के इसमें देखोगे तो अल्गोरिदम, ये जो येलो जहां मैं नॉइस काउंट कर रहा हूँ ना, algorithm is again on the rise. The information science is a big way. Then data management, ये जो पर्पल कलर है बड़ा, ये रिसर्च. सो साइंस में टेक्नोलॉजी में रिसर्च करने के लिए आपको लैंडस्केप ये इमर्ज होता है. तो ये आपको अगले वाले स्लाइड में पता चलेगा. जब 95 में विंडो 95 आया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट की आई, सिक्योरिटी की बातें होने लगी, तो एक सिक्योरिटी क्लस्टर बना. टेस्टिंग, मल्टीकास्टिंग, ऑडियो एनालिसिस, वीडियो कोलैबोरेशन, हे त्याचे नोड आहे. जितना ये ब्राउन वाला बड़ा उतना वो इम्पोर्टेंट, और उसके लिंकेजेस जो ये वाले चार्ट में आपको दिखेगा ना, वो लिंकेजेस उतने इम्पोर्टेंट. उस पर रिसर्च उस समय हुआ. जब हार्डवेयर चेंज हुए, मल्टीमीडिया आया, WW आया, तो फिर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, डेटाबेस मैनेजमेंट, इंटरनेट, सिक्योरिटी, ये सब चीजों पे काम हुआ. वैसे ही नए मिलेनियम में, मतलब 2000 के बाद, लुक एट इंटरनेट क्लस्टर पे किस तरीके से काम हुआ. आर्किटेक्चर, राउटिंग, प्लेसमेंट, वायरलेस नेटवर्क, सिम्युलेशन. तो स्पेशली जे सायन्सचे लोक आहेत, आता जे तुम्ही केलं दॅट इज ओके. आगे चल के अगर आप कहीं रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो या कोई पोस्ट डॉक रिसर्च करना चाहते हो, और स्पेशली साइंस के लिए ये एक अहम हो जाता है. हाँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टंट है. रिसर्च हैज टू बी स्मार्ट. म्हणजे काय हो? स्पेसिफिक. ते जितकं स्पेसिफिक राहील तितकं काम करणं सोपं राहील. सेकंड, मेजरेबल, क्वांटिफाइबल. आपका रिसर्च का थीसिस अगर एक 300 पन्ने के कागज है, टेबल है, मेरे कुछ काम का नहीं. उसमें क्वांटिफाई आपको करना है, क्वांटिफाई करना है. मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कैसे करना. इट हैज टू बी मेजरेबल. अगर मैं नागपुर के 15 होटलों में जाता हूं और मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि होटल के रिसेप्शनिस्ट का स्माइल कैसा है, ये मुझे देखना है. मी 15 हॉटेलमध्ये गेलो, त्यांच्या रिसेप्शनिस्टशी बोललो, आणि संध्याकाळी घरी येऊन मी दिलं कि रॅडिसन ब्लू आणि टूडी इम्पेरिकल के रिसेप्शनिस्ट का स्माइल सबसे अच्छा है. नाउ द क्वेश्चन आई मस्ट आस्क,
What do I mean by smile अच्छा है? Is there a definition of what is a optimum smile? कि पूरे 32 दांत दिखने चाहिए, मसल इतनी कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, मसल इतनी एक्सपैंड होनी चाहिए. So as a researcher, now I will have to quantify. So I take certain parameter, and based on that parameter, I give a weightage. Then I revisit all the 15 hotel, and then at the end of my 1 week exercise, I say that the smile index of what you call Radisson Blue is 1, the best, followed by Tully Empirical 0.96, and the worst one is a center point Ramdas Pet 0.55. तो फिर लोग बोलेंगे कि हाँ, it makes sense, right? थर्ड, अचीवेबल. क्योंकि हमको 5 साल का टाइम दिया गया है, हमको 5 साल में उसको अचीव करना है, एंड दिस इज ऑल्सो टाइम बाउंड. टी भी वही है, आपका रिसर्च उसके आगे जा नहीं सकता. एंड फोर्थ वन इज रिलेवेंट. जैसे साइंस में मैंने बोला कि वो रिलेवेंट होना चाहिए. नॉन सायन्स में जो आज अगर कोई स्टुडंट बोलते की मी भंडारा जिल्ह्यातल्या हुंडाबळीची समस्यावर करते, तिला परमिशन आहे हो करायची, असं कोणी तुम्हाला थांबवत नाही. पण आता हुंडाबळी आजच्या तारखेला रिलेव्हंट आहे का? प्रोबॅबली कमी रिलेव्हंट आहे. मोर रिलेव्हंट ये हरासमेंट, मी टू, जेंडर इक्विटी, वुमन एम्पावरमेंट, ये करंट इशू है. तो इवन नॉन साइंस में भी आपको ये देखना है कि आप रिलेवेंट टॉपिक पे कीजिएगा, वो अच्छा रहेगा. ऐसा आरआरसी कमेटी आपको ऐसा नहीं बोलती कि रिलेवेंट पे करो, वो चाहते हैं आपका रिलेवेंट हो, पर आप अगर करना चाहते हो और आपका गाइड अगर वो इसको मंजूरी देता है तो मोर और लेस सब टॉपिक ये एक्सेप्ट हो जाते हैं. कर लो. आगे चलते हैं. नाउ जैसे कि मोटिवेशन, वन ऑफ द थिंग दैट वी मस्ट नो हियर is a deep analysis. आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है तो यू मस्ट indulge yourself into deep analysis, and not only that, but conduct these studies of relevant factors. That is what is a definition defined by Sakaran in 2000. Unless and until you make a thorough in-depth analysis and able to conduct the study of relevant factor, it won't consider as a research. जैसे मान लो अभी अचानक नागपुर में 2 दिन बारिश हुई, फिर अभी टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो लोकांना ताप, सर्दी और उसमें कोरोना का टेंशन, तो हम कोरोना को थोड़ा दूर रखते. सर्दी, खोकला, ताप आला, तुम्ही डॉक्टरकडे गेले, डॉक्टर को भी मालूम होता है मौसम बदल रहा है, वो आपका पल्स वल्स चेक करेगा और आपको एक दवाई दे देगा. और दवाई देते समय वो क्या बोलता, ये दवाई अगर काम नहीं की तो 3 दिन बाद दवाई बदल के दूंगा. वो डीप एनालिसिस कर रहा है क्या? वो स्टडी ऑफ रिलेवेंट फैक्टर कर रहा है क्या? वो आपको पूछता है क्या ऐसा कितने बार हुआ, क्यों हुआ, आप क्या करते हो, क्या खाते हो, कहाँ पीते हो, कहाँ सोते हो ना. वो उसने रूल ऑफ थंब पे आपको दवाई प्रिस्क्राइब की. वेस्टर्न कंट्रीज में मैंने ये देखा है, इवन फॉर अ स्मॉल थिंग, एक तो वो डेटाबेस रखते हैं. मला नाही माहित नागपुरातले छोटे डॉक्टर डेटाबेस ठेवतात का, पण तिकडे माझी कुंडली असायची बरं का, उसको पूरा मालूम होता था. तो वो देखता था ये रिपीटेटिव है, फिर वो सवाल पूछता था कि आपने फिर से ये किया, हाँ फिर से यही किया, तो वो फिर पैथोलॉजी में जाता था, और फिर ये टेस्ट कर, वो टेस्ट कर, फलाना टेस्ट कर. सो दैट इज कॉल्ड एज ए डीप एनालिसिस, बिकॉज इवन जो डॉक्टर होता है आपका फिजिशियन, जो आपको प्रिस्क्राइब करता है दवाई, उसको तो वो तो रूल ऑफ थंब पे करता है, पर अगर कॉम्प्लिकेटेड केस होगी तो उसको एनालिसिस करना ही पड़ेगा ना. सो वो डीप एनालिसिस हो गया, राइट. देन रिसर्च मेथड के ऊपर भी कुछ लिखा गया है कि हम रिसर्च करते समय हमें क्या लगता है सर, हमें लगती है इंफॉर्मेशन, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो. तो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल और supported by quantitative and qualitative data. Not only that, it must involve a systematic process. आठवलं मी तुम्हाला नेचर ऑफ रिसर्च मध्ये सिस्टमॅटिक सांगितलं, म्हणजे असं
फालतूगिरीतून जाऊन कलेक्ट केलेला डेटा नको, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केलेला डेटा असावा तो, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, वो मैं आगे आपको बताऊंगा. देन डिजाइनिंग अ रिसर्च मेथड. नाउ आई एम श्योर आपके करिकुलम में कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी आपको एनलाइटन किया जाएगा. A same research can be conducted by 10 different research method. सोप्या भाषेत सांगायचं तर इफ आय हॅव टू गो फ्रॉम नागपूर टू अमरावती, I may go by train, I may go by my own car, I may walk, I may go by cycle, I may go by scooter, bus, n number of method. Huh? So if the destiny is one, the methods are different. Similar approach is there in a research. The same research can be done by various methods. Now you as a candidate, you must be able to justify that why you have chosen a particular research method, a particular design. इसके ऊपर भी हम थोड़ा आगे चल के बात करेंगे. A method which is suitable to your data or suitable to your topic or suitable to your terrain or suitable to your complexity that you are working on. जनरली कोई एग्जामिनर पूछता नहीं है, बट जब आप पोस्ट डॉक रिसर्च करोगे जो हम लोग करते हैं तो हमको हमेशा पूछा जाता है कि यही मेथड क्यों, दूसरी मेथड क्यों नहीं, तो वो जस्टिफाई करना पड़ता है. सो दस इन अ नटशेल वी विल बी एबल टू आंसर, find the answer to solve the uncertainties of a problem. अब scientific method, सबसे पहले develop the problem, define and delimit it. Identify dependent and independent variable. आप सब लोगों का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होगा, आपने उसको डिफाइन किया होगा. डिलिमिट, डिलिमिट का मतलब उसके अक्रॉस एक लक्ष्मण रेखा डाल देने का, ताकि हम उसके आगे पीछे जंप कर नहीं सके. मग तुम्हाला इंडिपेंडेंट डिपेंडेबल व्हेरिएबल त्याच्यातले शोधायचे, आयडेंटिफाय करायचे. क्या होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, बताओ तो जरा. व्हाट इज अ डिपेंडेंट एंड व्हाट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सांगा बरं, बताइए. क्या होता है? हॅलो, अरे सांगा की, लाजू नका, चुकीचं सांगितलं तरी चालेल, कोणी तुम्हाला इथे तुमचा सर फोटो. हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल means which are doesn't get affected by any other conditions, right? And dependent variable are they have to dependent on something so that some change will occur in them. मैं बहुत ही सर एक्सेलेंट. ऐसे नहीं नहीं, हाँ करेक्ट करेक्ट, वेग लैंग्वेज में 100% करेक्ट है. नहीं नहीं, see, the basic premise is to understand the concept. यस Representing concept is different. आपकी अंडरस्टैंडिंग 100% करेक्ट है. जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है वो डिपेंडेंट है. हाँ, जैसा आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो वो यस डिपेंडेंट हो गए. जब वो यस बच्चा बड़ा होके जॉब करेगा तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना. सो यस in a research we have to identify the variables immediately. Once you, because it is the variable that we are going to play with, whether it is a scientific research, I mean a science research, or it is a non-science subject related research, then we formulate the hypothesis. Hypothesis is nothing but the anticipated outcome. What a fair understanding I have uh, of my end outcome, कि मेरा ये स्टडी खत्म होने के बाद मैं चाहता हूं कि क्या होगा, है ना. जैसे मैं अगर अमरावती कार से जा रहा हूं तो मेरा एंटिसिपेटेड आउटकम है कि मैं 2.5-3 घंटा में पहुंच जाऊंगा अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता है, ट्रैफिक जाम नहीं होती है, ब्ला ब्ला ब्ला. अगर मैं पैदल जाता हूं, अगर मैं 12 किलोमीटर पर घंटे से चला, इतना इतना रेस्ट लिया तो मुझे 25 घंटे लग जाएंगे, so on and so forth. So before a candidate starts a research, he or she have a loose idea. I wouldn't use the word fair, एक
हल्का सा उनको मालूम रहता है कि क्या हो सकता है, उसी के बेसिस पे हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। ये हो गया एक अप्रोच। सेकंड अप्रोच ये होता है कि आप जब ये वेरिएबल आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो वही आपके हाइपोथेसिस का एक बेस बनता है, क्योंकि हाइपोथेसिस हम हमेशा स्टैटिस्टिकल टूल से ही टेस्ट करते हैं, हम उसे क्वालिटेटिवली टेस्ट नहीं कर सकते, वो करना गलत है, सरासर गलत है। हाँ, तो वेरिएबल अगर मेरे सही है, मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं उन वेरिएबलों को लेके मेरा हाइपोथेसिस बनाऊंगा। आपके भी सिनॉप्सिस में आपने 4-5 हाइपोथेसिस बनाए होंगे। इन अ डॉक्टरल डिसर्टेशन देयर शुड नॉट बी नो मोर देन 6 to 7 hypotheses. Minimum there should be a 2 to 3 hypotheses. Anything less and anything more would raise questions. Having said that, while conducting a study, if you come across certain exciting relationship, parametric relationship, you may add extra hypothesis. You are not allowed to delete any hypothesis from your synopsis which has been approved by the RRC committee. Then data, whether it is collected from the experiment, collected from the field, collected from the secondary sphere, we must maximize internal and external validity. External validity means if we are taking a data from the secondary source, that journal, that blog, that research paper, that has to be of certain standard. ऐसा नहीं कि किसी भी वेबसाइट पे आपको कुछ भी मिल गया आपने छापा, नो, that is checking external validity. Internal validity is that you have collected data again in a systematic fashion. You have what you call addressed the tracking error or sampling error, and then you are comfortable with this particular set of data. Then of course we do the analysis and we interpret the result. अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं पूरा एक साथ टिक कर देता हूँ और आपको समझाता हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, आप सभी को मालूम है। आई एम नॉट टेलिंग यू समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट टेलिंग यू समथिंग विच इज लॉजिकल एंड विच ऑल नो. सो what we call it as a scientific research mean you select the area. It can be social science, it can be material science, physics, chemistry, biology, zoology, pharmacology, anything. Within that area, you select a topic. Once you selected a topic, you ask yourself a cool question. ये रिसर्च कैसा करना उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोसेस कि आप उसमें क्या करना चाहते हो. एक बार आपके मन में वो सवाल आया जिसको हम कहते हैं क्रूड रिसर्च क्वेश्चन, देन यू गो टू लिटरेचर and try to find out the answer. If you find the answer to your question, then there is no need to do the study. But somehow you are unable to find the answers in the literature, then you refine your question. अब आप खुद से उसको और बेहतरीन सवाल कीजिए. The moment you refine the question, वापस लिटरेचर में जाइएगा, देखिएगा उसके जवाब मिलते हैं, जवाब मिल गए, आपको वो टॉपिक पे रिसर्च नहीं करना. अगर आपको जवाब नहीं मिलते हैं तो आपको आपका रिसर्च का सवाल जो है उसको कागज पे लिखना है. And then you start writing down or making the hypothesis, goal and objective. अभी आप लोग घर में हो, आज शाम को 5 बजे जब भी आपका सेशन खत्म हो जाएगा, आपका सिनॉप्सिस का कॉपी लो, वो सिनॉप्सिस के कॉपी पे बाजू में रखो, A4 पेज लो, पहले आपका टाइटल लिखो, उसके बाद उसके नीचे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखो, उसके बाद एम लिखो, ऑब्जेक्टिव लिखो और मैच करके देखो वो मैच होते हैं क्या. This is a very important concept in a research. The title of your thesis is equal to statement of problem is equal to aim is equal to objective is equal to hypothesis. प्रॉब्लेम काय आहे साहेब माहिती का?
हे सिनॉप्सिस करायच्या आधी विद्यार्थ्यांना सांगायला पाहिजे. हे मी अनेक कुलगुरूंसोबत बोललोय महाराष्ट्रात की बाबा त्याला सांगा तुम्ही हे कसं बनवायचं. तो बिचारा आपल्या समजुतीने तो सिनॉप्सिस बनवतो, आपण त्याला मान्यता देतो, मग तो काम करतो, आपण त्याला डिग्री देऊन देतो. याच्यात काही वाईट नाहीये. पण जर आपण त्याला हे सांगितलं, कारण होतं काय साहेब माहिती का, जेव्हा तुम्ही पोस्ट डॉक रिसर्च करता ना, या सगळ्या गोष्टी तपासल्या जातात. आगे कभी हमारी मुलाकात होगी तो मैं आपको कुछ मेरे सैंपल्स बताऊंगा. हम लोग जो सिनॉप्सिस लिखते हैं ग्रांट प्रोजेक्ट के लिए, जो हम कल डिस्कस करने वाले हैं, ये सब चीजें सबसे पहले वो देखते हैं कि कैंडिडेट को बेसिक रिसर्च मालूम है क्या. सो बेसिक रिसर्च इंश्योर करने का सबसे पहला फंडा क्या है, टाइटल ऑफ योर स्टडी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इज इक्वल टू हाइपोथेसिस. अभी आपसे अगर कुछ गलती हुई होगी तो छोड़ दो, अभी उसको हम कुछ ही कर सकते. सिनॉप्सिस में यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस, बरं का. नाही तर मग ते परत गडबड होतं, कमिटी लागते, त्यात काही करू नका. पण आता जे काही आहे आपल्याकडे ते आपण योग्य पद्धतीने कसं करायचं याच्यावर आपण विचार करू. वो बन गए आपले कि आपका स्टडी का डिजाइन करना है कि मैं मेरा रिसर्च कौन से तरीके से करूंगा. अब जो लोग बॉटनी, जूलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोलॉजी वाले हैं, उनको इथिकल इशू ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर वो किसी पेड़ पे, पौधे पे, जानवर पे, इंसान पे अगर टेस्टिंग करते हैं तो उनके प्रायर कंसेंट लेना है. उनकी अगर जैसे फार्मेसी वाले चूहे पे देते हैं तो चूहा मर जाता है, वो तो मुझे नहीं मालूम चूहा मरने के बाद क्या करना चाहिए उन्होंने. पण आपण त्याला गणपतीचं वाहन म्हणतो, पण आता काय त्याचा बिचाऱ्याचा बळी देतात हे लोक. तर आता 2-3 चुहे पाळा भाऊ घरी, असं सल्ला देईल मी त्यांना. पण ते गमतीत म्हणतोय मी. इथिकल इशू लक्षात ठेवले पाहिजेत. वो होने के बाद आना है पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग. भाई साहब लोगों, मैं आप सभी को बताता हूं, आपको इसके बारे में तो ये 7 दिन में जानकारी दी जाएगी, बट अभी मैं आप सबको बता दे रहा हूं. आपके पीएचडी में आपका सैंपल साइज कम से कम 888, मतलब 888, और ज्यादा से ज्यादा 1444 होना चाहिए. अब आप बोलोगे अटाले सर मजाक कर रहे क्या, ये कहां से लाया आपने 888 1444. ये एक जनरल प्रोसीजर है. और तुम्ही आचार्याच्या पदवीचा अभ्यास करता हो, तुम्ही 200 मागच्याच बैच मध्ये, आपकी जो पिछले हफ्ते की बैच हुई ना, वो लड़की का सैंपल डबल से ज्यादा हुआ, 250 से वो 500 पे गई. एक कोई वर्धे का लड़का था, उसका सैंपल 500 से 1500 हुआ. क्या होता है, आप जब किसी चीज के ऊपर रिसर्च करके उसकी फाइंडिंग पुट फॉरवर्ड कर रहे हो ना, तो आपको कम से कम 700-800 लोगों को तो मिलना पड़ेगा ना यार. आपने 4 लोगों को पूछा और आपने छाप दिया तो रहेगा क्या. मैंने आप सब लोगों को पूछा, अहो मोदी आवडतो का, तुम्ही सगळ्यांनी म्हटलं आवडतो. मग अटायांनी लगेच एक रिसर्च पेपर लिहिला, मोदी इज द मोस्ट बिलोव्ड प्राइम मिनिस्टर. इट विल बी रॉन्ग. देर आर 138 करोड़ पीपल इन द कंट्री. हाउ कैन आई आस्क 40 पीपल एंड से मोदी इज राइट. सो आपका जो भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, पी. सैंपल को क्या बोलते हैं, एन. एज एन अप्रोचेस पी, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस गोज अप. मैंने अगर पूरे 138 करोड़ में से अगर मैंने 80 करोड़ लोगों को मोदी के बारे में बोला, तो मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 95% आता है. कैसा, हम स्टैटिस्टिक्स में क्या कहते हैं, हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल से हमारे टूल लगाते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, देयर इज नो सच थिंग एज 100% इन द वर्ल्ड. इवन आपका सोना ये 99.999 असतं होते, 100% काही नसतं आयुष्यात, हे लक्षात ठेवा. मग माझा पी आणि एन हे जर जवळजवळ आले तर माझा लेवल ऑफ कॉन्फिडन्स खूप वाढतो. आता बरेचदा त्या दिवशी एका मुलीने कंप्लेंट केली, सर आमच्याकडे पैसे नाहीये, वेळ, आणि मागच्या वर्षी कोरोना आला बरं का. इवन माय रिसर्च वॉज अफेक्टेड. हाँ, इसीलिए आपको एकेडमिक रिसर्च में बहुत छूट दी गई है. 250 सैंपल वाले को भी पीएचडी मिलते हुए मैंने देखा है, 150 वाले को भी मिलते हुए देखा है, और 3000 वाले को भी मिलते हुए देखा है. पर एक आप रिस्पेक्टेबल लेवल ऑफ सैंपल अगर मुझे बोलोगे तो 888 1444, क्योंकि आपके पास समय सीमा 5 साल की है.
हाँ, कई बार मुझे लोग बोलते हैं सर पैसे नहीं, हमको सैंपल लेने के लिए पैसे लगते हैं आपको, तो वो ड्रॉबैक है। अभी हम जो काम करते हैं ना, हमारे स्टडी में हम पौने दो लाख के सैंपल लेते हैं, पर उसको हमें पैसे मिलते हैं। एक क्वेश्चन के हमको 500 रुपए दिए जाते हैं बाकायदा, तो हम सैम्पलिंग उतना हमारा बढ़ा सकते हैं। फिर भी एकेडमिक रिसर्च में आप कृपा करके 700-800 तो लीजिएगा साहब, हे ध्यान में रखिएगा। नाही तर काय होतं, तुम्ही खूप कमी सॅम्पल मध्ये खूप मोठा सिद्धांत मांडून टाकला तर लोक हसतात तुम्हाला. तर त्याच्यामुळे खूप मोठं सॅम्पल घेऊन खूप कमी लेवलचा सिद्धांत मांडणं हे मी केव्हाही प्रिफर करतो. देन वी लुक ॲट दी व्हेरिएबल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एंड देन वी सिलेक्ट दी टूल्स. यहाँ पे ये जो मैंने बायस लिखा है ना, कैंडिडेट क्या बोलता है, जान देना, मैं देख लूंगा, 200-300 कर लूंगा, उसका डबल कर दूंगा, वो 500 हो जाएंगे, जमा कर दूंगा. बायस आता है. मेरे क्लास में, ये अपने अकॅडमिक स्टाफ कॉलेज में, एका शिंपी समाजातली मुलगी होती आणि ती शिंपी समाजावर नागपूरचा अभ्यास करत होती. त्या बिचारीचं सॅम्पल काहीतरी 55-60 होतं. त्यावेळेस फिजिकल क्लासेस व्हायचे, ऑनलाईन नाही व्हायचे. तर मी तिला समजावलं, म्हटलं नाही, तुम्हाला जर खरोखर शिंपी समाजाचे समस्या, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये ऑनलाइन आने के बाद कोई लोग टेलर के पास नहीं जाते. उसका टॉपिक बड़ा अच्छा लगा मेरे को. अब टेलर लोगों के धंधे लगभग खत्म होने आए. अभी एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी लोग घर में ही करते हैं, सिलाई मशीन वगैरह सब नापतोल से वगैरह लेते हैं. तो मैंने बोला तो एक काम कर, तू तेरा सैंपल 4-5 गुना कर, तेरे को घूमना पड़ेगा. और वो जो भी एसोसिएशन रहता है शिंपी, वो उसके फादर शिंपी थे उनके. तो बाद में वो उसका ईमेल आया मेरे को सब होने के बाद कि सर मैंने मेरा सैंपल 600 650 तक लेके गई और मेरे को बहुत अच्छे फाइंडिंग मिले. होता क्या है, आपने सैंपल आपका बढ़ाया तो आपके फाइंडिंग अच्छे आते. मैं अगर आपको पानी के समुद्र में 5 फुट गहराई में लेके गया और बोला देख कितना सुंदर है, तो आप बोलेंगे हाँ सुंदर है. पर मैं आपको 100 मीटर नीचे लेके गया और आपको सुंदरता दिखाई समुद्र की, तो आपको मजा आएगा. वही आपको सैंपल में करना है. जितना, मैं ये नहीं कह रहा एक्सेसिव लो, उसमें का आपका बायस हटाव. तुमच्याकडे, तुम्ही जर मला विचारलं ना, आता आपण या स्टेजला आलोय, काही लोकांनी डेटा वगैरे कलेक्ट केला असेल, पण ज्या लोकांनी अजून केला नाहीये ना, तुम्ही जर 6 महिने 180 दिवस, 6 महीने में आपने अगर डेटा कलेक्ट किया ना, आपको गारंटी से मैं बोलता हूं, जितना आपका अच्छा डिजाइन है, जितने आपके अच्छे टूल है, जितना आपका सैंपलिंग है, आपके रिसर्च के रिजल्ट एनरिचिंग येतात. एनरिच, आपको उसमें मजा आती है. नहीं तो हो जाता है. अगर आपको वैसी वाली शॉर्टकट वाली पीएचडी करना है, ले लो. फिर आप जिस दिन खड़े रहोगे, कोई आपको पूछेगा तो आप जवाब दे नहीं पाओगे, तो वो आपके ऊपर है. बायस ठेवायचं नाही. बायस असतो बरं का, आम्ही म्हणजे सुद्धा काम करताना बायस हा वैयक्तिक असतो. मग टूल मध्ये, am I going to do a primary survey, am I going to conduct a research in a laboratory, am I going to do a focus group discussion, am I going to use a Google survey form in Microsoft Excel, मैं फोन पे बात करूंगी, ईमेल भेजूंगी, क्या करूंगी, वो लिख के रखो कागज पे. और फिर देखो आपके हाइपोथेसिस गोल ऑब्जेक्टिव के लिए कौन से टूल ऑप्टिमम है. तुम्ही जर उद्या पनीर बटर मसालाची भाजी केली तर ती भाकरी सोबत द्याल का हो? नाही. भाकरी सोबत तुम्ही काय कराल, झुणका बनवा. तसंच तुमचा हायपोथिसिस गोल आणि ऑब्जेक्टिव्ह जर समजा पनीर बटर मसाला असेल, तर तुमचं त्याच्यासोबत तुम्हाला बटर नान किंवा नान द्यावी लागेल, किंवा खूपच गळेबितेमध्ये फुलका द्यावा लागेल. भाकरी तर देऊ नाही शकत. तो क्या होता है, आपके टूल ये आपके स्टडी डिजाइन और आपके एम ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिपेंड रहते. हाँ, जैसे अगर आपके घर में पानी का नल लीक हुआ, तो आपको वो पेचकस पाना वो सब लगेगा, वो टूल है आपका उसको ठीक करने का. आप क्या रस्सी और भलते चीजों से उसको ठीक करोगे क्या? नहीं. तो वैसे ही आपको टूल निवडताना कोणाचा तरी सल्ला घ्या बाबा. मी माझ्या काळात खूप सल्ले घेतले, मी खूप लोकांना त्रास दिलाय. हे स्टॅटिस्टिक्सचे काही लोक आहेत ना, त्यांना जाऊन विचारायचं, सर याला काय घ्यायचं, फिरायचं, लोकांशी बोलायचं. मला लोकांनी मूर्ख म्हटलेलं खूप आवडतं आणि मी सांगतो की हो मी मूर्ख आहे, फाईन. मेरा अगर लर्निंग हो रहा है ना, इफ somebody is calling me fool, I टोटली एक्सेप्ट. मतलब
मैंने आइंस्टाइन की कई किताबों में देखा है, उसको पागल बोलते थे। वो मानता था हूँ मैं पागल, आज उसका नाम देते ना लोग। तो खैर मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, पर मैं पागल हूँ। पर आप किसी से जानकारी लेने में कृपा करके ना हिचकिचाए। वंस यू फाइनलाइज योर रिसर्च टूल, आप जाके एक पायलट कीजिए, 10-15 जगह से क्वेश्चनर भर के आइए या लॅबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कीजिए आणि बघा स्वतः काय होतं. हम्म? आणि मग ते जो ओके असेल, वर्क प्लान बनाओ. हाँ, कि कोई अगर नागपुर का डेटा ले रहा है तो नागपुर का मैप लेने का, उसके 4 टुकड़े करने के, इक्वल रीजन में से सैंपल लेने का, तो क्वेश्चनर फिल करा लेने का. नहीं तो क्या होगा, आपने केवळ पश्चिम नागपूर से लिया और आप बोल रहे हैं आपके टाइटल में नागपूर जिल्ह्याची, नागपूर शहराचा अभ्यास आहे, तो बायस होऊन जातं. वर्क प्लान करने का, डेटा कलेक्ट करने का, डेटा आने के बाद उसका मैनेजमेंट करने का. मैनेजमेंट मतलब आप सब लोग शाम को आपका लैपटॉप खोलिए या डेस्कटॉप खोलिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलिए, उसके ऑप्शन में जाइए, डेटा टूल पैक एड ऑन पे क्लिक कीजिए, डेटा टूल पैक ऐड कीजिए, आपके पूरे फंक्शन उसमें आते हैं. हम्म? और हर एक के फंक्शन पे हेल्प फंक्शन आहे और यूट्यूब पे व्हिडिओ आहे, ते सगळं बघायचं, अभ्यास करायचा. काही लोकांना कोणातरी थर्ड पार्टीकडनं डेटा करायचा आहे, ते तुम्ही करा, तो तुमचा लुकआउट आहे. पण मी जे केलं मी तुम्हाला सांगतोय, एक्सेल इज मोर देन सफिशियंट टू टैकल ऑल योर डेटा. फिर वो बताते हैं डेटा को एनकोड कैसे करने का, एक्स रो आणि कॉलम मध्ये. डेटा कलेक्ट करताना अजून एक गोष्ट तुम्हाला मी सांगतो. सपोज आपको एज, इनकम ये लेने का है, आपके पास 2 चॉइस है. आपने क्वेश्चनर में एज के सामने डैश लिखा है, मतलब आपका पार्टिसिपेंट जो होगा वो बताएगा 36, 42, 45. इनकम में वो बताएगा 5,000, 7,250, 55,000. आय विल नॉट रिकमेंड यू दिस टेक्निक. आम्ही काही रिसर्चला वापरतो बरं का, म्हणजे असतात काही, त्याला एक शब्द आहे, तो शब्द आता लक्षात येत नाहीये, त्याला पॉइंट डेटा म्हणतात. हो, पॉइंट. मला त्या पॉइंटचा डेटा पाहिजे, मला ती व्यक्ती 36 वर्ष 5 महिने 7 दिवस असेल तो डेटा पाहिजे, किंवा त्याचं उत्पन्न 7,732 रुपये 56 पैसे तो डेटा पाहिजे. जेव्हा तो डेटा हवा असेल तेव्हा हे वापरायचं, नाही तर रेंज साधारण 5 वर्ष एज साठी 30 ते 35, 35 ते 40, 40 ते 45 आणि इन्कम मध्ये 0 ते 5,000, 5,000 ते 10,000 वगैरे. हा, हे विचार करून मांडायचं बरं का. हे मी जे सांगतोय ते पत्ता की लकी नाहीये. आपला टॉपिक काय, कोणाकडनं आपण डेटा घेणार, ते लोक कसे आहेत, मी कशी रेंज मध्ये टाकू की पॉइंट डेटा घेऊ. तुमच्या प्रश्नावलीमध्ये 27 पेक्षा जास्त प्रश्न नको. मी खूप रागवतो जेव्हा विद्यार्थी माझ्याकडे येतो 150 प्रश्न घेऊन. तुला काऊन लागते एवढे प्रश्न, नाव गाव वस्तू सिनेमा. जो आपको नहीं चाहिए वो सवाल आपको पूछना नहीं है. इसीलिए क्या करना, वापस पैरामीटर को देखने का और हाइपोथेसिस को देखने का. आपको हाइपोथेसिस समझ में आए तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि आपके क्वेश्चन 30 के आगे जाने सकते. हाँ सॉरी, माझ्याकडे बेटा नो 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 नो. तर तुम्हाला 30 पेक्षा जास्ती प्रश्न विचारत आलेले पाहिजे, म्हणजे ते कंडेन्स ज्याला आपण म्हणतो ना, कंडेन्स रिसर्च, ते खूप हाय क्वालिटी असतं. नाही तर कॅन्डिडेट उगाच प्रश्नावली मोठी दिसावी म्हणून खूप प्रश्न विचारतो, पण ऍक्च्युअली त्याच्यातले 10% तो वापरतो. ते वेस्ट ऑफ रिसोर्स आपण त्याला म्हणू. इंटरप्रिटेशन आणि रिपोर्टिंग. तर ते झालं आपलं. आता आपण एक ब्रेक घेऊ. ब्रेक आता वाजले 12:10. 10 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ आणि आपण 12:20 येऊ. तुम्हाला हा पार्ट मी साधारण एक 12:50 किंवा 12:45 पण येतो आणि मग 1:30 वाजेपर्यंत थेरॉटिकल सिलेबस शिकवतो. आपण काय करू, प्रश्न जे आहेत ना ते तुम्ही लिहून ठेवा आणि मी तुम्हाला 10-15 मिनिटं एक वेळ देतो. शेवटी आपण 15च्या नंतर तुमचे जे काही प्रश्न असतील ते करू. नाही तर काय होतं ना, मग ते लिंक तुटून जाते सगळ्यांची. चालेल. सो 12:20 पे हम फिर से ज्वाइन होते हैं. राइट. Okay, sir. ओके. Friends, don't leave the meeting. मीटिंग को लीव मत करिए. Just take refreshment break and come back. Stay connected in the meeting.